everyone, I am Ashi and welcome to my YouTube channel. I'm here because I want to make manifestation extremely easy for you all. For one on one coaching, you can connect me on my mail ID. I'm displaying my mail ID on the screen. If you want one on one session, one time session, that is also available. If you want a little boost, a little motivation, you can still connect me on this mail ID. And today we are going to talk about something very important. We're going to talk about that circumstances do not matter and if something is genuinely important to you. If you really want to manifest something, you'll make efforts for it and you'll go behind it. Let's start the video. So, before starting this video, I want to share something that happened with me today. Today is genuinely one of those days, guys, when I didn't want to come out of my bed. I didn't want to do anything. I just felt like sleeping, doom scrolling, not doing anything, not talking to anyone. And I was genuinely not feeling okay. But still, I convinced myself that I have to shoot this video. I put my makeup on, I changed my clothes. I'm in front of camera now and shooting this video for you all. You know why? Because this thing genuinely give boost to my energy. It gives me a huge kick. So if something is really important for you, if you really want to do something and उस चीज़ को करने से आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलती है, सुकून मिलता है, तो आप वो ज़रूर करोगे। जैसे वीडियोज़ बनाने से आप लोगों को ये सीक्रेट, ये लॉ शेयर करने से जो खुशी मुझे मिलती है ना, आई कैन नॉट टेल यू। किसी भी क्लाइंट से अगर मैं बात करूँ और मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ दैट हाउ दिस लॉ वर्क्स, I cannot tell you the level of energy I have inside me, because I have extreme love for this thing. I want to spread this awareness in all over the world to each and every person available on this planet, the one who genuinely wants to learn. सो मैंने आपको ये चीज़ इसलिए शेयर की क्योंकि ऐसे बहुत दिन आप सबकी लाइफ में आते हैं जब आप सिर्फ खुद के साथ रहना चाहते हैं या सिर्फ सोना चाहते हैं, सिर्फ खाना चाहते हैं, सिर्फ फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं एंड आपको और कुछ करने का दिल नहीं करता। इट्स नॉर्मल गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मलाइज इट बिकॉज ये मेरे साथ भी होता है। इतनी साल मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने के बाद भी ऐसा होता है दैट आई जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग because it's okay. We all are human beings, right? I always mention that हमारे अंदर इतने emotions होते हैं और हर emotion feel करना ज़रूरी होता है। ठीक है? You can be happy, you can be neutral, sometimes you can be sad, but ultimately you have to understand that your inner world matters, that peace, that certainty inside you matters the most. Okay? आप कितना भी उदास हो जाओ, आप कितना भी गिव अप करना चाहो चीज़ों पर, आपको हमेशा अपने इनर वर्ल्ड की तरफ लौट के आ जाना चाहिए और समझना चाहिए कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द गॉड, योर थॉट्स आर रिफ्लेक्टिंग इन द 3D रियलिटी। आज तक बचपन से लेकर जो भी आपकी लाइफ में होता है वो आप ही की वजह से होता है, आपके थॉट्स की वजह से होता है। फिर जब वो 3D में रिफ्लेक्ट होता है, आप बुरा मान जाते हो कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, सब कुछ आपने खुद किया है। एंड देन आप सैड फील करते हो एंड देन आप कुछ नहीं करना चाहते एंड देन आपके इंपॉर्टेंट टास्क मिस हो जाते हैं। एंड ये टॉपिक मैंने सिर्फ इसलिए रेज नहीं किया है कि आपके कोई इंपॉर्टेंट टास्क मिस हो जाते होंगे, इसलिए मेंशन किया है क्योंकि लोग इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो नहीं करते हैं। ठीक है? लेजीनेस इज नॉट द रीजन, it's the feeling of feeling sad, the feeling of not being okay, the feeling of stress, the feeling of anxiety। जब ये सब आपके अंदर चल रहा होता है ना, मुझे पता है, आई कैन फील यू गाइज, हमें कुछ करने का दिल नहीं करता। ट्रस्ट मी, ना अफर्मेशन करने का दिल करता है, ना विजुअलाइजेशन करने का दिल करता है। बस मन करता है कि बैठे रहें, कुछ ना करें एंड कैसे ना कैसे हम अपनी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना चालू कर देते हैं कि यार मेरे आसपास इतनी नेगेटिविटी है, मैं कैसे करूं, या मुझसे नहीं हो रहा, एटलीस्ट नॉट टुडे।
and go and so on. Guys, first of all, it's okay, but you need to understand this. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ऐसे नहीं चलता है. अगर आज मैं नहीं उठती, आज मैं अपनी अपने इस वीडियो के लिए शो अप नहीं करती, तो मेरे ब्रेन को मैं ये बिलीव दिला देती कि कुछ भी हो जाए, मेरे लिए मेरे डिज़ायर्स भी इम्पोर्टेंट नहीं है. मेरे लिए मैनिफेस्टेशन चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना. बहुत टाइम लिया मैंने टू एनालाइज इन लाइफ कि एक्चुअली मुझे लाइफ में क्या करना है. एंड देन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे लोगों को इनलाइटन करना है. मुझे अगर लॉ की इतनी समझ है तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये अवेयरनेस हर जगह फैलाऊँ. मैं पॉडकास्ट करूँ फ्यूचर में, मैं लोगों के पास जाऊँ, मैं स्कूल्स में सिखाऊँ ये चीज़ें. I want to spread this awareness. This things gives me happiness. अगर आज मैं नहीं उठ के आती, आज मैं शो अप नहीं करती, तो मैं क्या करती, अपने ब्रेन से ये कह देती कि ये मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं. एंड आपके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी, उसके लिए आप शो अप करोगे, चाहे सर्कमस्टांसेस कैसी भी क्यों ना हो. आप शो अप करोगे ही करोगे. ओके. अगर कोई इंसान एसपी मैनिफेस्ट कर रहा है, तो मैंने देखा है उनके सर्कमस्टांसेस बहुत ख़राब होते हैं. वो ये मान लेते हैं कि उनका उनके पर्सन के साथ अलाइनमेंट ही नहीं है. वो कितनी भी कोशिश करे, झगड़े होते ही हैं, चीज़ें लाइन नहीं होती, वो डिज़ायर्ड कमिटमेंट नहीं मिल रही है, वो टाइम अटेंशन नहीं मिल रहा है, एंड व्हाट नॉट. बट ऐसा नहीं है गाइस. आपका एसपी आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये जो सर्कमस्टांसेस आपको दिख रही है, वो आपकी वजह से क्रिएट हुई है और आप ही की वजह से बदल सकती है. एंड यू आर द ओनली वन हु कैन चेंज इट. उसको और कोई बदल नहीं पाएगा इस दुनिया में, सिर्फ आप बदल सकते हो. कैसे बदल सकते हो? स्ट्रॉन्ग मेंटल डाइट रख के अपने दिमाग को इतना स्ट्रांगली ये बिलीव दिला दो कि अगर मैंने ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए हैं, तो मैं इसका ऑपोजिट भी क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड मैं करके दिखाऊंगी, नो मैटर वॉट. आप एक बार खुद से सोचो ना, अगर आप इतना नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर सकते हो, आपका आपके एसपी के साथ इतना प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब आपने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली सोचा. और हो सकता है इस एसपी के लिए ना सोचो, किसी और एसपी के लिए सोचो, लेकिन वो सबकॉन्शियस थॉट्स तो रह ही जाते हैं माइंड में, जो कभी ना कभी रिफ्लेक्ट करते हैं. उस समय आपको रिएक्ट नहीं करना है. यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप परसिस्टिंग. आई ऑलवेज से दैट अगर आपके लिए वो इंसान ज़रूरी है, इफ़ दैट पर्सन इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, यू विल वेक अप, you will spare that 10 minutes in your day, you will visualize or affirm or script whatever is your go to go technique, you will do it. क्योंकि सी अगर आपने एक छोटा सा थॉट सोचा जो सोच के छोड़ दिया, तो भी हो सकता है कि वो फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो जाए. बट उसकी अश्योरेंस नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा. हालांकि टाइम डजेंट मैटर, बट आप वो छोटा सा थॉट सोचने के बाद बहुत नेगेटिव थॉट सोचने लग जाते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस चीज़ के बारे में, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत डिले हो सकता है इन दैट केस. लेकिन अगर आपको सच में कुछ चाहिए, सच में कुछ चाहिए, तो आप उसके लिए टाइम स्पेयर करोगे. ओके. आप सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते, ये चीज़ समझ जाओगे, क्योंकि आपने सर्कमस्टांसेस क्रिएट की है. आप उन सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकते हो, दैट टू एक्सट्रीमली ईजी, एक्सट्रीमली ईजीली. बस आपको आपका माइंड शिफ्ट करने की ज़रूरत है. जो आप सोच रहे हो उसका ऑपोजिट सोचने की ज़रूरत है. एंड एक और चीज़ है कि लोग खुद को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज करते हैं. मतलब अगर कुछ गलत हो गया तो दिल भी लाइक मेरे साथ ऐसा होता ही है, ऐसे ही होते आया है, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरे साथ तो मुझे पता है ऐसा ही, मुझे तो पता ही था ऐसा होगा. अरे तुम्हें पता था ऐसा होगा, तुमने अपने दिमाग को बिलीव दिला दिया था ऐसा होगा, इसलिए ही ऐसा हो गया. पर जो हुआ है वो बहुत इजीली बदल सकता है. तुम बदलोगे उसको. यू योर सेल्फ विल चेंज इट बाय थिंकिंग ऑपोजिट ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग टिल नाउ. Everything will change in matter of seconds, in a day, in 2 days. Everything will change, I assure you. Have faith in me. I have practiced this law since many years now. I have applied this law. I have gotten results. And this is the जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो एक लॉ है दुनिया का. कि अगर जो न्यूटन ने निकाला था कि सेब अगर ऊपर से गिरता है तो वो नीचे ज़मीन पे ही जाता है. इट्स अ लॉ ऑफ नेचर. ठीक है, दुनिया ऐसे ही चलती है. तो दुनिया
आपकी मैनिफेस्टेशन वाली दुनिया ऐसे ही चलती है। यू जस्ट हैव टू बी लॉयल फॉर योर डिज़ायर, ठीक है? जो आप कॉन्शियसली कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो वही आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल्स ऑपोजिट ही सोचते हैं। एक और चीज़ है, सिर्फ ऑपोजिट सोचना इज़ नॉट द रीज़न। कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार मैंने एक बार अपने ब्रेन को बोल दिया, मैंने वो एक बार डिसीजन ले लिया, मेरी 3D रियलिटी में कोई चेंजेस नहीं है, तो आई विल गो बैक टू नॉर्मल, क्योंकि ये तो काम ही नहीं करता। तो हम क्यों कहते हैं आपको परसिस्ट करो? एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, चौथी बार में हो जाएगा, मत छोड़ो होप। इस लॉ को बहुत डीपली समझ लो। जो आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो वो आपकी रियलिटी में आना तय है, चाहे उसके लिए कितने भी लोग बदलें। तो सर्कमस्टांसेस बिल्कुल मैटर नहीं करती, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे ऐसे माइक्रो सेकेंड्स में चेंज हो जाती है और सब कुछ आपके फेवर में हो जाता है। एंड जब आपको आपका डिज़ायर मिलता है, वो सर्कमस्टांसेस चेंज होती है, तो आपको इतना नेचुरल लगता है कि यार मैं तो सोच भी नहीं सकता था इस तरीके से हो जाएगा, बिकॉज होता है ऐसा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कवर करना चाहती हूँ, जो शायद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहले अपना विक्टिम माइंडसेट छोड़ो। क्यों विक्टिमाइज करना है भाई खुद को? बहुत कर लिया तुमने बचपन से लेके आज तक, मेरे साथ ही बुरा होता है, ये वो, दुनिया बहुत ख़राब है, मेरे साथ लोग बहुत गलत करते हैं, मेरा एसपी, मुझे जितने एसपी मिलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाके रेंट करना, मुझे तो जितने एसपी मिले हैं वो सब ऐसे ही हैं यार, सब के सब मेरे साथ धोखा करते हैं, फलाना फलाना XYZ। स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट। दे आर रिफ्लेक्टिंग यू, द एंटायर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्टिंग यू एंड योर थॉट। आप जो अपने दिमाग में यहाँ सोच रहे हो अपने बारे में, पूरी दुनिया आपके बारे में सिर्फ वही सोच रही है, ठीक है? एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज थिंकिंग exactly what you are thinking about yourself, including your SP, including your family, including everyone. एंड अगर आप खुद को विक्टिमाइज करना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि मेरे साथ ही बुरा होता है, इंस्टेड ऑफ दैट आप ये सोचो कि मैं, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, मुझे पता है अच्छा ही होता है, एंड कोई मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। ऐसे 2 दिन तो करो। मैंने हमेशा आपसे कहा एटलीस्ट प्रैक्टिस द लो फॉर 2-3 days, यू विल सी रिजल्ट्स एंड दैट्स माई गारंटी। I have seen changes in my life. I have uh, taught a lot of people who have seen changes in their lives as well. And I know it's a fail proof law, and law never, sorry, I'm so sorry. And the law never fails. It never fails. It can never fail. तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि अगर सच में कुछ आपके लिए ज़रूरी होगा तो आप कैसे भी उसके लिए वक्त निकालोगे, ठीक है? ये 1-2 सेकेंड का विजुअलाइजेशन एंड देन बैक टू नॉर्मल वो आपको नहीं करना है। अगर आपको सच में कुछ चाहिए ना, तो एवरी डे अंटिल यू गेट दैट डिज़ायर, स्पेस सम टाइम फॉर इट। जो आपको टेक्निक अच्छी लगती है वो करो। टेक्निक्स आर जस्ट टूल्स। आप जैसे भी लिव इन दी एंड, मतलब आप आखिरी एंड स्टेट में रह सकते हो, वो आप करो। यू विल गेट योर डिज़ायर। दूसरा हमने ये सीखा कि जो सर्कमस्टांसेस होती है वो मैटर नहीं करती, क्योंकि वो आप ही ने क्रिएट की है, आपके माइंड ने क्रिएट की है, और आप अपने माइंड से दूसरी अच्छी पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। एंड सर्कमस्टांसेस इज एक्सट्रीमली मैलिएबल। 3D कैन चेंज इन मैटर ऑफ सेकेंड्स, इट कैन रियली चेंज। थर्ड, विक्टिमाइजेशन। स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ। कमज़ोर लोग होते हैं जो विक्टिमाइज करते हैं। नाउ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लॉ। जब तक आप इस लॉ को नहीं समझते थे और आप खुद को विक्टिमाइज करते थे, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड द लॉ, व्हेन यू नो द सीक्रेट ऑफ लिविंग द बेस्ट पॉसिबल लाइफ, यू शुड नेवर विक्टिमाइज योरसेल्फ। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा हो ना, आप मेरे या किसी भी कोच जो आपको पसंद है उसके वीडियो जाके देख लिया करो, मोटिवेट हो जाया करो, एंड देन बैक टू नॉर्मल, कि यू आर दी बेस्ट एंड आपके साथ सब अच्छा होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। एंड माय अल्टीमेट एम टू मेक योर मैनिफेस्टेशन जर्नी एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू ऑल। एंड उसके लिए, जैसे कि मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में ही सब कुछ समझाती हूँ। मैं कुछ बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं बताती हूँ मैं, इसलिए बहुत टेक्निकल वर्ड्स जैसे बर्ड बिफोर लैंड एंड सबर्थ और ये सब जो वर्ड्स हैं, जो हम बुकिश लैंग्वेज है, जो मैंने सीखे हैं, मुझे पता है, बट मैं वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि
मैं और कंफ्यूज नहीं करना चाहती। आई नो आप इंटरनेट पे इतना कंटेंट देख के वैसे भी बहुत कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन लेकिन जो मैं कहती हूँ वो करो, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स बता रही हूँ मैं आपको। अगर बहुत एंग्जाइटी फील होती है तो थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सिंपल 1 2 3 मिनट जितना आपसे होता है। फिर आप लिव इन द एंड वाला विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशंस करो, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। उसके अलावा जितना हो सके दिन में अपने थॉट्स को ना कैच करने की कोशिश करो। अगर आपको पता है कि आपका ब्रेन नेगेटिव हो रहा है तो उसको वहीं रोको और फ्लिप करो। कुछ नहीं करना है, फ्लिप करने में माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, इट वोंट टेक मच टाइम। आप अगर आपके दिमाग में सपोज ये चल रहा है कि मैं एस पी, उसने ऐसे क्यों आज सुबह रिएक्ट किया था, क्यों आज उसने मेरे से ठीक से गुड बाय नहीं बोला या मुझे प्यार से गुड मॉर्निंग नहीं बोला, दिमाग में इंस्टेंट फ्लिप, वाह कितने अच्छे से बात करता है वो मुझसे। एंड पता है जब आप फ्लिप करोगे ना, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस टेक्निक इज कि आपको सीधा खुश कर देती है, वो पीस दे देती है जो आपको चाहिए। एंड यही तो हमें करना है अल्टीमेटली। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें ऑलरेडी ऐसा फील करना है कि वो हमारे पास है, एंड यू विल इवेंचुअली गेट इट बिकॉज 3D हैज टू कैच अप। देखो 3D क्या है ना, डिलेड मिरर है, थोड़ा सा धीमे चलता है। मिरर जैसे आपने तुरंत साफ कर दिया और आपका आपको मतलब आपने खुद का मेकअप किया, तुरंत आप मिरर में देख सकते हो। 3D भी मिरर है पर थोड़ा सा डीलेड मिरर है। हो सकता है आज के आज ना दिखे, कल दिख जाए या परसों दिख जाए, पर दिखेगा वही जो आप चाहते हो देखना। और जब तक नहीं दिख रहा है, जब तक नहीं दिख रहा है तब तक जो दिख रहा है वो आपके मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने नया थॉट सोच लिया है दिमाग में, आपने नया बीज बो दिया है, अब आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, एंड मैक्सिमम टाइम ट्राई करो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो बार बार कर पाओगे। अच्छा फील करने की कोशिश करो, इवन इफ सब कुछ बुरा चल रहा है, कहीं ना कहीं वो अच्छी फीलिंग आपके दिल में है, बस उसको फील करने की कोशिश करो। उस समय मैं ये नहीं कह रही अपने एसपी को मैनिफेस्ट करो, पैसा मैनिफेस्ट करो, जो भी आप मैनिफेस्ट करो करो, सिर्फ अच्छा फील करो। जब आप अच्छा फील करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको ब्रेन ब्रेन में बहुत क्लैरिटी आएगी, एंड आपका मन करेगा टेक्निक्स करने का, एंड उसके थ्रू आप एंड स्टेट में रह पाओगे, इवेंचुअली अपने डिजायर्स को अचीव कर पाओगे। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर कुछ भी आपके मन में है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ऑल्सो आई एम मेंशनिंग माई मेल आई डी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हियर। आप चाहो तो आप मुझे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकती हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई कैन टीच यू ऑल। सो अगर आप मुझे कनेक्ट करोगे आई विल गिव यू वन ऑन वन कोचिंग, हम वन टाइम सेशन भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा बूस्ट ऑफ मोटिवेशन चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। अगेन मेरी मेल आईडी पे ही कनेक्ट करना है, मैं अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देती हूँ। डू कनेक्ट मी देयर एंड just live the best possible life, okay? From today try to feel as much good as possible, क्योंकि ये एक ही बार मिलेगी लाइफ, ये एज, ये इतना कुछ अभी है आपके पास। ट्राई टू बी इन प्रेजेंट एज मच एज पॉसिबल। एक और सीक्रेट है, इसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इन शॉर्ट मैं ये कहूँ कि इस मोमेंट में रहो, मतलब सब छोड़ दो और ये सोचो कि ये मोमेंट पे मैं सुकून से यहाँ बैठा हूँ ना, बस ये बेस्ट है। दैट्स इट, दैट इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ, द पावर ऑफ नाउ। पूरी बुक है इसके बारे में, अगर हो सके तो रीड ज़रूर करना। एंड मैं डिस्क्रिप्शन बुक्स बॉक्स में ट्राई करती हूँ, उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी। इन केस इफ़ यू वांट टू बाय एंड रीड दैट बुक, डू बाय एंड रीड दैट बुक। ये जो बुक्स है ना जो नेविल गुडार्ड ने लिखी है और एकार्ट टोल और इन लोगों ने लिखी है, बहुत अमेजिंग बुक्स लिखी है यार। दीज पीपल आर, आई मीन दीज पीपल आर जेम। They literally had the complete knowledge of consciousness. Consciousness is the only reality. कॉन्शियसनेस सुधार लो, बहुत बड़ी चीज़ होती है सुधारना, बस दुनिया बदल जाएगी, सब आपके फेवर में हो जाएगा। एंड आपको पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस मेलिएबल है एंड इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। जो अंदर चल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। ये सिमुलेशन ब्रेक करके अगर आप सिर्फ इंटरनल वर्ल्ड सुधार लो, आपका एक्सटर्नल वैसे भी सुधर जाएगा। Thank you so much for watching my video. If you like the video, please do like, comment, subscribe and चैनल को फॉलो कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो फ्यूचर में भी लाती रहूँगी। एंड अगर आपको का कोई सजेशन है किसी टॉपिक को लेके तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।